Hello students, how are you? Very interesting moves on Thursday and Friday. Thursday, Dow Jones dived from 14,800 to 14,550 and from there recovered on the same day on Thursday, and with a very small drop it recovered all the losses. US 100, Nasdaq 100 that managed to recover whatever the fall was on the Thursday on Friday. But just look at US 30. US 30 has managed to recover all the losses of 3 days in one single day. There was a big fall from 34,700 to 34,100, and from there it recovered. There was a top of somewhere near to 35,000, 34,890. There was a fall on 6th. There was some recovery on 7th. Then there was a fall on 8th, and on 9th it recovered. All the losses were wiped out in just one single day. There was a sharp recovery on this day. It was not in the United States of America. It was in the Europe also. Just look at the DAX. There was a big fall on 8th. One single day, there was a drop from 15,700 to 15,300, and then it recovered all the loss of 400 points in just one single day. 8th and 9th were the mirror image. The fall, recovery, fall and recovery. Look at the CAC, the France index CAC 40. It's the same scenario. There was a big fall from 6,500 to 6,340, 340 to again 6,530. The same one day there was a big fall, and all the recovery on the Friday, the last day of the week. These 2 days, sharp movements we could see in these last 2 days. Now look at the Nifty. Nifty dropped on 8th, but on 9th there was no much recovery. This is the opening candle of 8th, and from there there was 1 hour, 2 hour, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hours plus there was a only steep fall, and then there was a lower opening on 9th, and then market was very much sideways, and I thought there will be a big movement of 150 points on Nifty also, but it didn't happen. Yes, but in Europe and America that was being reflected a sharp movement, which I guessed for even Nifty, but that didn't reflect in the price. So let's make triangle, perfect triangle. It was trading on 9th, it was trading in the triangle, and there was no breakout on the either side on the 9th, I think. Now what the best thing is, this time also Nifty could not manage to breach above 15,911 and 15,933 zone. Let's mark 15,911 and 15,933. Nifty this time also approached this level but could not breach this, and then there was a big drop from that level. It is not, now it is almost 3 times plus that market has approached this level and dropped from there. First it was on 15th of June that it was mentioned these levels, that now it was trading near to 15,900 when it was mentioned that now it will be difficult to breach 15,911 and 15,933 level, and then market dropped from there in a big wave from 15,450, again approached and dropped to somewhere near to 15,650, and then again it approached and has dropped again to 15,650, 70 or so. So these are the 4 times or 3 times plus that market has tested the level of 15,911 and 15,933 and could not breach this level. But yes, that market is very much in a range for some time now. Okay,
in the weekly levels of July 5 and 9, one message was being posted on day 1 about the Maruti, that Maruti at resistance 2 on day 1 up by 130 points. Now resistance 2, which is 7723, will work as a trend decider. 7723 के ऊपर प्राइस अगर गया तो then there will be further rally, otherwise the possibility is market will drop from here. और मारुति ने जो एक बार लेवल्स देख लेते हैं, what are the levels of Maruti. Maruti trend decider is 7574 7574 और उसका जो 7726.69 is resistance 2. इस ट्रेंड डिसाइडर से इट अप्रोच टू 7726 और इसने 7723 और उसके आसपास टॉप बनाया और वहां से इट स्टार्टेड करेक्शन. इसने ट्रेंड डिसाइडर तक वापस ड्रॉप किया 7574. ना केवल दैट, इट अप्रोच टू द स्पोर्ट 2 7422. 300 पॉइंट की करेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस 2, फ्रॉम रेजिस्टेंस 2 टू स्पोर्ट 2. Sport 2 is 7422. That is also very important trend decider. So there was a fall of Maruti of 300 points in one single day. Let's do a activity on the chart of Maruti. Okay, now this is the chart of Maruti and let's find out what the price action advise us to do in this circumstances. अगर प्राइस एक्शन लगाएं, कोई ट्रेंड लाइन लगाएं, कोई ज्योमेट्री करें, तो देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स. क्या हमारे को सेम जो हमारे लेवल्स हैं, क्या उन लेवल्स को कंप्लीमेंट करता हुआ प्राइस एक्शन हमें दिखाई देता है या नहीं. जस्ट फाइंड आउट दीज टू लो पॉइंट्स. जब भी मार्केट इज मूविंग अप, वी विल टेक टू बॉटम्स टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन. नाउ लुक एट दिस. अगर ये प्राइस एक्शन या जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है फ्रॉम बॉटम टू लोएस्ट लो टू हायर लो, देन इट हैज गिवन ए डाउनवर्ड सेल एज द प्राइस ब्रीच बिलो. नाउ ये जो ऊपर का स्लोप से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है फ्रॉम टॉप टू टॉप, इसने जब ब्रेकआउट दिया था, जस्ट लुक एट दिस. दिस इज ए ट्रायंगल. मार्केट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाद जब ब्रेकआउट दिया है, देन देयर वाज ए गुड पुल बैक ऑफ 130 पॉइंट्स इन वन सिंगल डे. जस्ट लुक एट ए क्लोज लुक. जस्ट लुक एट इट. द प्राइस ने जब भी इस ट्रायंगल को ब्रीच किया, देन देयर वाज ए जंप ऑफ ऑलमोस्ट 130-40 पॉइंट्स. वापस इसने करेक्ट किया, उसके बाद फिर एक जंप दिया, उसके बाद देन इट ब्रीच्ड इवन बिलो द ट्रायंगल और वहां से एक चांस और, मार्केट एक चांस और देती है, पुल बैक वापस इनटू दैट ट्रायंगल एंड फ्रॉम देयर इट मार्च डाउनवर्ड टू स्पोर्ट 2. आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, दीज आर कंप्लीमेंटिंग. जो अगर प्राइस एक्शन है जो ट्रायंगल से ब्रेकआउट हुआ, वो कहां तक जाएगा. दैट फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज R1, R2 एंड R3. हमारे पास लेवल है. R2 से उसने करेक्शन लिया और वहां करेक्शन लेने के बाद देन इट अप्रोच्ड द ट्रायंगल अगेन और ट्रायंगल से जैसे ही नीचे फॉल किया तो हमारे पास लेवल्स ओपन हो गया फॉर स्पोर्ट 1 एंड स्पोर्ट 2 विच इज अचीव्ड सक्सेसफुली. फ्रांस के कैक 40 ने अपना स्पोर्ट 3 विच वॉज 6388 उसको टच किया. इवन इट मेड ए लो ऑफ 6348 और वहां से जो बाउंस किया इट रीच टू 6552 विच इज नियर टू द ट्रेंड डिसाइडर. और जो टॉप बनाया उसके बाद जो पुल बैक फ्राइडे को, दैट वाज नियर टू 6532. बजाज ऑटो आल्सो मैनेज टू ब्रीच इवन द फाइनल स्पोर्ट नोज डाइव. फ्राइडे को तो बहुत बड़ी गिरावट बजाज ऑटो में देखी गई और उसके अतिरिक्त भारतीय एयरटेल ने अपने फाइनल रेजिस्टेंस के पास पहुंचने में सफलता पाई. दैट वाज ए क्लीन अप ट्रेंड. और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 335 पे 2 बार अप्रोच किया और दैट वाज ए सेकंड रेजिस्टेंस और दोनों बार वहां से करेक्शन ली. 335 से 329, फिर दोबारा 335 और 336 और वहां से देन इट मैनेज टू ड्रॉप टू देयर ट्रेंड डिसाइडर ऑफ 324.
और टाटा मोटर ने पहला रेजिस्टेंस टच किया और वहाँ से जो गिरावट चालू हुई, देन इट रीच टू द लेवल ऑफ फाइनल सपोर्ट। फाइनल सपोर्ट 307 रुपये की थी और शायद 304 रुपये का लो फ्राइडे को बनाया। देन ट्रेंड डिसाइडर वाज 343 और 343 से पहले 357, फिर 343 से 311 और उसके बाद 304, ये फॉर्म करने की बहुत अच्छी मूवमेंट टाटा मोटर में दिखाई गई। उसने पहले ऊपर का एक लेवल टच किया और उसके बाद नीचे के तीनों लेवल टच किए। दैट वाज ए वंडरफुल मूवमेंट बाय टाटा मोटर्स, और जो लेवल्स दिए गए थे उसको उसने बहुत अच्छे से ऑनर भी किया। बजाज फिनसेफ, उसने तो रिकॉर्ड जंप लिया, पांचों ही ग्रीन कैंडल और केवल एक उसके अंदर डोजी बना। उसने जो फाइनल रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रीच कर पाया। दैट वाज ए वेरी शार्प मूवमेंट बाय बजाज फिनसेफ। और उसके अतिरिक्त हिंडाल्को ने तीनों रेजिस्टेंस छुए, अपने ऊपर टॉप रेजिस्टेंस तीनों को छूने की ताकत की। एबीबी ने फाइनल जो सपोर्ट लेवल था वहां तक ड्रॉप कर पाया, उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके क्लोज पहुंच पाया। दैट वाज ए वंडरफुल थिंग। आईसीआईसीआई बैंक ने भी रेजिस्टेंस 2 को छुआ और उसके बाद ट्रेंड डिसाइडर तक वापस करेक्ट कर गया। अंबुजा सीमेंट, उसने हाई फॉर्म किया 364.50 का एंड फाइनल टारगेट वाज 364.50 का और 366 का ही फाइनल टारगेट है। सिर्फ एक पॉइंट से वो फाइनल जो टारगेट था उसको छूने में सफल नहीं रहा, बट दैट वाज ए वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज लेवल्स। मारुति का हमने डिस्कस किया ही डिटेल में कि रेजिस्टेंस 2 से देन इट ड्रॉप टू सपोर्ट 2। दैट वाज आल्सो ए वंडरफुल शो। इंडसइंड बैंक, इसका ट्रेंड डिसाइडर था 1007, वहीं उसने बॉटम बनाया और उसके बाद 1061 को फाइनल जो रेजिस्टेंस है उसको छूने में सफल रहा। विदाउट इवन ए सिंगल स्टॉप लॉस देयर वाज ए अचीवमेंट ऑफ 53 पॉइंट्स। दैट वाज आल्सो वंडरफुल। टाइटन 1750 का ट्रेंड डिसाइडर था, वहां से वो गिरना चालू हुआ और उसने 30-40 पॉइंट ट्रेंड डिसाइडर के नीचे देने में सफल हुआ। टाटा स्टील का लो था 1136 और ट्रेंड डिसाइडर है 1136 से वही ट्रेंड डिसाइडर से अपनी जर्नी चालू की विदाउट स्टॉप लॉस, मैनेज टू हिट 1225, वहाँ से कुछ करेक्शन लिया और दैट वाज ए जंप ऑफ ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स from 80-90 points from the trend decider. That was also a wonderful. अरविंदो फार्मा ने सक्सेसफुली दोनों सपोर्ट टच की। HDFC बैंक ने 2545 फ्रॉम द ट्रेंड डिसाइडर, एक ही घंटे के अंदर 1 आवर्स के अंदर उसने 2478 से 2545 का लेवल विच इज 65 पॉइंट्स अबव द ट्रेंड डिसाइडर अचीव। देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट, बट ये सब स्टॉक्स मैनेज कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए और जो लेवल्स दिए गए थे उनको ऑनर कर पाए। दैट वाज ए वंडरफुल वीक। नीचे के लेवल्स और ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स ने ऊपर के रेजिस्टेंस 3 को टच किया और बहुत सारे लेवल्स ने सपोर्ट 3 को टच किया। दैट वाज ए ग्रेट मिक्स्ड परफॉर्मेंस। और जो नए जितने भी मेंबर्स आए हैं उन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है, अपना ईमेल और टेलीफोन नंबर प्लीज़ राइट टू rka508@gmail.com और इनके डिटेल्ड जो नेम है दैट आई विल पोस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड और जो हमारी सेरेमनी है टू वेलकम करने के लिए जो न्यू मेंबर्स को, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स।